Jai Bharat, dear all Advitiyans. Good morning, everyone. So, in our last lecture of this chapter, we discuss about bio micromolecule and bio macromolecule, right? As well as we also talk about the different kinds of element on the basis of its concentration inside the protoplasmic content, and that include major element, minor element, and trace element, right? Now, in this lecture, we are going to proceed for the first carbonic compound, and that is carbohydrate, right? If we talk about the carbohydrate, then, right, carbohydrates are compound which is made up of carbon, hydrogen, and oxygen. So, carbohydrate is made up of three elements, that is carbon, hydrogen, and oxygen, right? Okay, now they are called, so why it is called carbohydrates? Because basically the proportion or ratio of hydrogen and oxygen is same as water, right? If we talk about the water, then water is what? H2O, right? And if we talk about the glucose, for example, here we have C6H12O6. So we can say that the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, right? So same kind of ratio is found in what? Carbohydrate as well, right? So every hydrogen जो दो molecule है उसके सामने एक क्या होगा? Oxygen, right? And that is why it is known as hydrates of carbon, right? They are called so because, why it is called carbohydrate? Because the ratio of hydrogen and oxygen is same as water, right? So their formula appears like hydrates of carbon. उसकी formula कैसी है? Hydrates of carbon. और वो formula जो है वो क्या है? वो formula है CnH2OM, where we can say that where N is equal to M or N is not equal to M, right? तो अगर हम बात करें किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है इट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. एंड व्हाई डज इट कॉल सो? बिकॉज उसका जो फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कैसा है? वो ऐसा है कि जिसमें हमको ये दिखेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है जो है इट इज लाइक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O उसी प्रोपोर्शन में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? एक बार और देखते हैं. दे आर कॉल्ड सो, क्यों उसको कार्बोहाइड्रेट बोलता है? बिकॉज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज वाटर, सो देयर फॉर्मूला अपीयर लाइक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ओके, कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड सो बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स बोलते हैं. सैकेराइड मीन्स व्हाट? दोज हु आर स्वीट इन टेस्ट, राइट? बिकॉज इट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकरीन, मीन्स व्हाट? स्वीट और शुगरी. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मोनोसैकेराइड. देन इफ देयर आर टू मॉलिक्यूल देन इट बिकम डाइसैकेराइड. देन 3 to 10 that is oligosaccharide, and more than 10 polysaccharide. Then what is that saccharide? Saccharide is because it is a sugary in taste, or we can say that it is a sweeter in taste. Okay, carbohydrates are produced by green plant ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म कैसे होगा, राइट? ये पार्ट हम निकाल रहे हैं. ओके, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो प्लांट जो है दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट? तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O, राइट? This is the, we can say that this is the equation of a photosynthesis process. ठीक है, यहाँ पे presence of chlorophyll ये हम बोल सकते हैं, and presence of sunlight is required, right? तो यहाँ पे देखिए कि 6 मॉलिक्यूल किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के. 12 मॉलिक्यूल किसके हैं? H2O के, right? In presence of light, this 12H2O is split into H plus and OH माइनस. किस में स्प्लिट हो जाएंगे वो? H प्लस प्लस OH माइनस. दिस H प्लस रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. H प्लस जो वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा. वो इतना इजी नहीं है, राइट? इसके वो पूरा चैप्टर वो बाद में देखेंगे हम. ओके, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ देन इट बिकम व्हाट? इट बिकम ग्लूकोज, which is a product of photosynthesis, and this OH is utilized to form 6 molecule of H2O. तो हम ये बोल सकते हैं कि green plant synthesize carbohydrates by the process of
photosynthesis which takes place in presence of sunlight, and to trap that sunlight the chlorophyll content is required, right? Okay, now carbohydrates can be aldose or it could be a keto. ओके, अब आल्डो और कीटो शुगर क्या है वो हम देखेंगे आगे. कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी aldose having free aldehyde group और कीटो having कीटो ग्रुप. तो कार्बोहाइड्रेट जो है दैट कुड बी ऑफ टू टाइप. एक, अगर फर्स्ट कार्बन के साथ या फिर टर्मिनल कार्बन के साथ अगर यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड ONH, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ CHO, इट इज नथिंग बट द आल्डिहाइड ग्रुप, है या ना. तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट में कोई कार्बन पे, वो मोस्टली कौन सा होगा, टर्मिनल कार्बन ही होगा, राइट. तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ONH है. इट इज ऑल्सो वी कैन से दैट द एग्जिबिट बाय द CHO, ऐसा भी आप लिख सकते हो. वो क्या है, आल्डिहाइड. अगर ऐसा आल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एक्टिव है कोई शुगर में तो हम उसको क्या बोलेंगे, आल्डो शुगर. और अगर सेकेंड नंबर के कार्बन जो हैं उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है, दैट शोज कीटो ग्रुप, तो वो शुगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कीटो शुगर हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट या फिर टर्मिनल कार्बन पे आल्डिहाइड ग्रुप तो वो आल्डो शुगर हो जाएगा, और सब टर्मिनल मतलब सेकंड कार्बन पे क्या है, कीटो ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, कीटो शुगर. ठीक है, तो शुगर और कार्बोहाइड्रेट कुड बी ऑफ टू टाइप, वन इज आल्डो शुगर एंड द अदर वन इज कीटो, राइट. Carbohydrates can be classified, carbohydrate can be classified as monosaccharide, which is the simplest form, then disaccharide, which is formed by the two monosaccharide unit, then oligosaccharide 3 to 10 मॉलिक्यूल होंगे तो, और polysaccharide 10 से ज्यादा होंगे तो. ठीक है, अब वो एक बार हम वापस लिख लेते हैं. क्या हम यहाँ पे बोल रहे हैं, सपोज अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल. कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल. अगर मॉलिक्यूल एक है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड. इफ देयर आर 2 मॉलिक्यूल तो वो क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड. क्या हो जाएगा वो, डाइसैकेराइड. और अगर मॉलिक्यूल 3 to 10 है तो वो क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड. और अगर मॉलिक्यूल मोर देन 10 मॉलिक्यूल है तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड. अगर 1 मॉलिक्यूल है तो मोनोसैकेराइड, 2 है तो डाइसैकेराइड, 3 to 10 तो ओलिगोसैकेराइड, मोर देन 10 तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड जो है वो हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली दिस classification is based on the complexity of the carbohydrate. If there is only 1 then it is monosaccharide, if there are 2 disaccharide, if 3 to 10 then it is oligosaccharide, and more than 10 that is considered as a polysaccharide. ये सारे फॉर्म जो है वो हम अलग अलग देखने वाले हैं, राइट. Okay, now let us start with the simplest form, and that simplest form is what? That simplest form is monosaccharide. Monosaccharide means what? There are only 1 molecule. There is only 1 molecule. इसको हम क्या बोलेंगे, monosaccharide, right. These are single and the smallest saccharide unit which cannot be hydrolyzed further into smaller carbohydrate. ठीक है, अगर कोई सिंपल फॉर्म में ही है तो फिर सिंपल से ज़्यादा वो हाइड्रोलाइज या फिर उसका डाइजेशन जो है वो नहीं हो सकता. ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जांपल यू इनटेक अ स्टार्च इन योर डाइट. ठीक है, तो स्टार्च जो हो क्या है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड. स्टार्च जो हो क्या है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड. इट डाइजेस्ट एंड ग्रेजुअली इट विल कन्वर्टेड इनटू अ डाइसैकेराइड. किस में कन्वर्ट होगा वो, डाइसैकेराइड. और वो डाइसैकेराइड जो है वो भी हम लिख देते हैं, सपोज वो डाइसैकेराइड है माल्टोज. ठीक है, then this maltose is again hydrolyzed, right. This is hydrolyzed, this is again hydrolyzed. Hydrolysis मतलब what, addition of water and lysis process, तोड़ना, hydrolysis basically it is a digestion, right. और उसके बाद maltose से क्या बन गया, glucose. So glucose is a monosaccharide which is not further can digested. वो वापस जो है वो अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता. क्यों, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. सो फर्दर इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, चलिए, क्योंकि वो कैसी शुगर है, सिंपल शुगर है. डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट कर सकते हो, ओलिगोसैकेराइड को डाइजेस्ट कर सकते हो, पॉलीसैकेराइड को फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हो, बट ग्लूकोज को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. क्यों, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट. ओके, they are compound with 3 to 7. Those who are having a 3 to 7
कार्बन, ये मोनोसेकेराइड की हम बात करें, जिसकी हम क्या बोल रहे हैं, दे आर कंपाउंड्स विथ 3 to 7 कार्बन एटम एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2ON, राइट। जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो CnH2OM, वेर N इज इक्वल टू M और N इज नॉट इक्वल टू M, ठीक है। ये दोनों जो है वो कब होंगे वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, तो मोनोसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड जो है इट मे मेड अप ऑफ 3 कार्बन एंड अप टू द 7 कार्बन, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वो 2 कार्बन से बने हो सकते हैं, सॉरी 3 कार्बन से बने हो सकते हैं, 3C, देन 4C, देन 5C, 6C एंड 7C। Monosaccharide made up of 3 carbon considered as a triose sugar. Those who having a 4 considered as a tetrose sugar. Those who having a 5 known as pentose sugar. 6 hexose sugar. 7 heptose sugar. तो monosaccharide जो है it is made up of 3 to 7 कार्बन। अगर 3 कार्बन से बना है then it is considered as a triose sugar, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस एंड 7 है तो हेप्टोस, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज अ क्लासिफिकेशन। Triose means made up of 3 carbon and the example is glyceraldehyde and dihydroxyacetone। Triose sugar में हम कौन से 2 एग्जांपल ले रहे हैं, glyceraldehyde and dihydroxyacetone। ये हम वापस भी देखेंगे। इसमें glyceraldehyde जो है it is a aldo triose sugar and dihydroxyacetone phosphate जो है that is keto triose sugar। ये कैसा है, keto triose, और ये कैसा है, aldo triose, ठीक है। But it is made up of 3 carbon। अगर वो 4 कार्बन से बना है then it is known as a tetrose sugar and the example is erythrose। कौन सा एग्जांपल है, erythrose। if it is made up of pentose then it is if it is made up of 5 carbon then it is considered as a pentose sugar। example ribose, ribulose, deoxyribose, xylose and arbinose, ठीक है। ये भी हम डिटेल में स्ट्रक्चर जो देखेंगे। if monosaccharide made up of 6 carbon तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोस शुगर, दैट इंक्लूड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। एंड इफ मोनोसेकेराइड मेड अप ऑफ 7 कार्बन देन इट इज कंसिडर्ड एज अ हेप्टोज, राइट, एंड द एग्जांपल इज सैडोहेप्टुलोज। तो मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो 3 से लेके 7 कार्बन उसमें हो सकते हैं। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टुलोज, राइट। तो ये जो है वो हमने मोनोसेकेराइड के टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन इन इट। लेकिन ये सबके अगर हम ये ट्रायोस से लेके हेप्टुलोज की बात करें तो इसमें 3 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है दैट इज ट्रायोस शुगर, एक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ट्रायोस शुगर, देन पेंटोस शुगर, ठीक है, एंड देन हेक्सोस शुगर। ये 3 शुगर जो हैं, कौन से 3 मैं बोल रहा हूं, ट्रायोस, पेंटोस एंड हेक्सोस। ये तीनों शुगर जो हैं वो पूरे फिजियोलॉजी में बहुत जगह पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आएगा। इसलिए ये तीनों शुगर जो है वो हम डिटेल में ले रहे हैं, कौन कौन से, ट्रायोस शुगर, पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर, और तीनों के 2-2 पार्ट हम देख रहे हैं। Which are the aldo triose and keto triose? Same way aldo pentose keto pentose and same way aldo hexose keto hexose। चलिए, तो मोनोसेकेराइड में पहले हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट ट्रायोस शुगर। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायोस शुगर। ट्रायोस शुगर मतलब मेड अप ऑफ 3 कार्बन। कितने कार्बन का बना होगा वो, मेड अप ऑफ 3 कार्बन, ठीक है। अब ये ट्रायोस शुगर जो है इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। Triose sugar is classified into 2 group, right? One is aldotriose and the other one is ketotriose। Triose sugar जो है उसको हमने क्या किया, क्लासिफाइड किया, किसमें, aldotriose and ketotriose। Those triose sugar which having the aldehyde as an active group उसको हम क्या बोलेंगे, aldotriose। एंड दोज हु हैविंग अ कीटो एज एक्टिव ग्रुप उसको हम क्या बोलेंगे, कीटोट्रायोस, ठीक है। तो उसमें पहले हम देख रहे हैं कौन सा, आल्डोट्रायोस। अब आल्डोट्रायोस का जो एग्जांपल जो है दैट इज ग्लिसराल्डीहाइड। कौन सा एग्जांपल है, ग्लिसराल्डीहाइड, राइट। और कीटोट्रायोस का जो एग्जांपल है दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटोट्रायोस का एग्जांपल कौन सा है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और आल्डोट्रायोस का एग्जांपल कौन सा है, ग्लिसराल्डीहाइड। अब जब कभी भी हम चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे
ट्रायोस का, पेंटोस का, या फिर हम बात कर रहे हैं हेक्सोस का। तो 3 स्टेप जो है वो आपको याद रखने हैं, राइट। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, टू फॉर्म कार्बन चेन। सबसे पहले हम क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन चेन, राइट। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम क्या फॉर्म करेंगे, एक्टिव ग्रुप। कौन सा है, बराबर, एक्टिव ग्रुप कुड बी एल्डिहाइड और इट कुड बी कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो पहला क्या, टू फॉर्म अ कार्बन चेन, सेकेंड इज एक्टिव ग्रुप, एंड देन थर्ड स्टेप इज टू कंप्लीट अ वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको सेटल करना पड़ेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म कार्बन चेन, सेकेंड स्टेप टू डिटेक्ट एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप कौन सा है वो हमको डिटेक्ट करके वहां पे वो सेट करना होगा, एंड फिर कार्बन की वैलेंसी जो हमको क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाइड, विच इज अ 4, राइट। अब पहले हम देख रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रायोस शुगर की। और ट्रायोस शुगर में पहले हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर ट्रायोस शुगर है दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन, तो सबसे पहले हमको कार्बन चेन बनाना है 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये डायहाइड्रोक्सीएसीटोन डायहाइड्रोक्सीएसीटोन दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो ट्रायोस शुगर। तो यहां पे भी मुझे 3 कार्बन तो बनाने पड़ेंगे, 1, 2 एंड 3, है ना, ओके। अब ये हम जानते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कैसा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज अल्डो ट्रायोस शुगर। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कैसा है, अल्डो ट्रायोस शुगर। एक चीज याद रखो, whenever it is a aldo triose sugar, the aldehyde group is present at the terminal carbon। कहां पे होगा वो, टर्मिनल कार्बन पे, ठीक है। तो ये जो है टर्मिनल कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, एंड दिस वन इज द थर्ड, राइट। तो यहां पे C डबल बॉन्ड O एंड H, ये जो हम बना रहे हैं इट इज नथिंग बट द एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। ये जो पार्ट है वो क्या है, इट इज अ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ओके। तो अगर आल्डो शुगर होगा तो फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एक्टिव ग्रुप। और अगर वो कीटो शुगर है तो सेकंड कार्बन जो है उसके ऊपर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, दैट इज सब टर्मिनल कार्बन, ठीक है। यहाँ पे ट्रायोज है इसलिए वो सेकंड होगा, अदरवाइज उसको हम क्या बोलेंगे, सब टर्मिनल। और एल्डिहाइड में क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल कार्बन, ठीक है, ओके। तो दोनों में कार्बन चेन जो फॉर्म हो चुकी है, और दूसरा स्टेप एक्टिव ग्रुप जो है वो हमने सेट कर लिया। इसमें एक्टिव ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, इसमें एक्टिव ग्रुप कौन सा है, कीटो। कीटो ऑलवेज एट द सब टर्मिनल कार्बन एंड एल्डिहाइड इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन। अब हम सेटल कर रहे हैं क्या, वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कार्बन जो उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है 1, 2, 3, 4। सेकंड जो है उसमें यहां पे हम लिखेंगे OH और यहां पे क्या आएगा H। तो अब सेकंड की भी क्या हो चुकी है, वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हियर ऑल्सो देयर इज अ OH देन H एंड यहां पे भी क्या आएगा H। तो अब देखिए कि ये तीनों जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो 4 वैलेंसी जो है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी C3H6O3। अब देखिए C3H6O3 है तो इससे ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए इट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि H2O जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इट इज ऑलवेज डबल देन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और वैसा ही किस में होता है, वाटर में होता है, राइट, ओके। तो ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात। अब हम किसकी बात करें, कीटो ग्रुप की बात करें, राइट। और उसमें एग्जांपल कौन सा है, डायहाइड्रोक्सीएसीटोन। तो डायहाइड्रोक्सीएसीटोन में हमने सेकंड नंबर या फिर सब टर्मिनल कार्बन पे हमने क्या बनाया है, कीटो ग्रुप बनाया है, दिस इज द सेकंड कार्बन, ठीक है, ओके। तो सेकंड कार्बन की वैलेंसी देखो कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या हाँ हो चुकी है, 1, 2, 3 एंड 4 उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, ओके। फर्स्ट नंबर के कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इसकी वैलेंसी भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, हाँ या ना, ओके। सेम वे थर्ड कार्बन पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, OH देन H देन H, ठीक है। तो अब इस कार्बन की भी वैलेंसी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब इसका भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें तो भी वो भी क्या आएगा, C3H6O3। तो यहां पे फर्क कितना है, दोनों ट्रायोस शुगर है, राइट। दोनों का मॉलिक्यूलर इक्वेशन कैसा है, C3H6O3 C3H6O3। सो बेसिकली दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये इंटरकन्वर्टेबल है, राइट, ओके। वो ये दोनों मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट दैट will come in a chapter of photosynthesis as well as respiration।
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये दोनों आएंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं आएंगे। यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसके साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो जाएगा देन इट बिकम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ क्या हो जाएगा, फॉस्फेट अटैच हो जाएगा देन इट बिकम डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा देन इट बिकम DHAP डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया देन इट बिकम PGAL मींस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये दोनों कंपोनेंट जो है वो हम सब्सटेंस देखेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन में, तो दोनों स्ट्रक्चर जो आपको याद रहनी चाहिए। ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड ग्रुप जो मैंने लिखा उसमें देखिए मैंने क्या लिखा है C डबल बॉन्ड O, और एक साइड पे मैंने क्या लिखा है H। यही चीज जो है वो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो CHO, आया ना, इसका मतलब यही होगा, सेम ही है, ये दोनों एल्डिहाइड ही है, राइट। और सेम वे ये जो टर्मिनल कार्बन है यहाँ पे थर्ड कार्बन, उसमें यहाँ पे एक साइड पे क्या है OH, फिर यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, इसको आप डायरेक्टली CH2OH भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CH2OH। तो अगर शुगर कैसा होगा एल्डिहाइड, तो एक टर्मिनल एंड पे क्या आएगा CHO, दूसरे टर्मिनल एंड पे क्या आएगा CH2OH। लेकिन यहां पे देखिए ये कीटो शुगर है, तो यहां पे एक टर्मिनल पे क्या है CH2OH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। सेम वे टर्मिनल कार्बन पे यहां पे भी क्या होगा CH2OH। तो अगर शुगर कैसी है, कीटो शुगर है, तो दोनों एंड पे CH2OH आएगा, और सब टर्मिनल कार्बन पे क्या आएगा, कीटो ग्रुप जो है वो आएगा। तो आई होप कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आ गए होंगे। वापस सबसे पहले हम क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन चेन, उसके बाद हम क्या फॉर्म करेंगे, एक्टिव ग्रुप, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कार्बन की वैलेंसी जो है वो बैलेंस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात की, दैट इज अबाउट ट्रायोज शुगर। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, पेंटोज शुगर की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पेंटोज शुगर की। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर विच इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन, तो पेंटोज शुगर जो है दैट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप, राइट। और यहां पे भी वो 2 ग्रुप जो है वो कौन से होंगे, पेंटोज शुगर के जो ग्रुप है दैट इज वन इज आल्डो ग्रुप एंड द अदर वन इज कीटो ग्रुप, मतलब आल्डो पेंटोज एंड कीटो पेंटोज। क्या बोलेंगे हम उसको, आल्डो पेंटोज एंड कीटो पेंटोज। ओके, अब अगर हम बात करें आल्डो पेंटोज की, ये वाला पार्ट जो है मैं थोड़ी देर के लिए दूर कर रहा हूं, आप इसको CH2OH लिख सकते हो। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब अगर हम आल्डो पेंटोज की बात करें, तो आल्डो पेंटोज में 2 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, राइट, एंड दैट 2 एग्जाम्पल्स आर, वन इज राइबोज एंड द अदर वन इज डीऑक्सी राइबोज और रिबोज। ठीक है, तो एक जो है वो कौन सा है, रिबोज, एंड द अदर वन इज डीऑक्सीरिबोज। ये दोनों शुगर जो है दे आर कंसिडर्ड एज अ आल्डो पेंटोज शुगर। हम उसको क्या बोलेंगे, आल्डो पेंटोज शुगर। ठीक है, अब आल्डो पेंटोज शुगर की बात करें तो ये है कैसा, इट इज अ मेड अप ऑफ 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बन चेन 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन। यहां पे भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन यहां पे भी आ गए, है ना। ओके, तो कार्बन चेन हमने फॉर्म कर लिया है। अब हम ये भी जानते हैं कि रिबोज एंड डीऑक्सीरिबोज इज आल्डो पेंटोज शुगर। वो कैसे शुगर है, इट इज अ आल्डो पेंटोज शुगर। अगर आल्डो पेंटोज शुगर है तो अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, आल्डो ग्रुप, आल्डिहाइड ग्रुप, और आल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन। तो यहां पे मैं C डबल बॉन्ड O और H भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं CHO। देखिए मैंने यहां पे बताया था, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आल्डिहाइड को, CHO। ओके, तो हमने आल्डिहाइड ग्रुप यहां पे बना दिया। ये डीऑक्सीरिबोज वो भी क्या है, आल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, उसमें भी, तो यहां वहां पे भी हमने क्या लिखा, CHO। ओके, अब सेकंड थर्ड स्टेप कौन सा था, पहला था कार्बन चेन, दूसरा था ग्रुप, वो हमने आल्डिहाइड बना दिया क्योंकि आल्डो पेंटोज शुगर है। अब थर्ड कौन सा था, कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी जो कंप्लीट हो चुकी है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसा है वो स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन की वैलेंसी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड नंबर के कार्बन पे OH, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे इस साइड OH, नीचे H, नीचे H, तो डायरेक्ट मैं इसको CH2OH लिख सकता हूँ।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हाँ या ना। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका स्ट्रक्चर है, रिबोज शुगर का। एंड दिस रिबोज शुगर इज वन ऑफ द पेंटोज शुगर। रिबोज शुगर जो क्या है, इट इज अ पेंटोज शुगर फाउंड इन अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए 3 चीज चाहिए, एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड फॉस्फोरिक एसिड। क्या चाहिए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो रिबो न्यूक्लियोटाइड है, मींस अ न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, राइट। उसमें जो पेंटोज शुगर होगा, दैट पेंटोज शुगर इज रिबोज टाइप। और डीएनए का अगर न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसमें जो पेंटोज शुगर होगा वो कौन सा होगा, डीऑक्सीरिबोज। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए ये यहां तक का स्ट्रक्चर आप समझ में आ गया। अब डीऑक्सीरिबोज में जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि सेकंड नंबर का जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, उसमें दोनों साइड पे क्या आएगा, एच एच। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम, राइट। और अगर यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाँ या ना, यहाँ पे हमने वो ऑक्सीजन नहीं लिखा है, उसका मतलब ये है कि इन डीऑक्सीरिबोज देयर इज वन ऑक्सीजन लेसर देन द रिबोज, और इसलिए हमको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकल चुका है, दैट इज डीऑक्सीरिबोज। और ये शुगर जो है, दैट पेंटोज शुगर फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीरिबोज शुगर है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में रिबोज शुगर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है वो देखें तो यहाँ पे रिबोज जो है वो क्या है, इट इज C5H10O5, हाँ या ना, C5H10O5। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो ये हाँ N इज इक्वल टू M हो चुका है, लेकिन अगर मैं डीऑक्सीरिबोज की बात करूं तो वो क्या होगा, C5H10O4 होगा। क्या होगा, C5H10O4। O4 क्यों है, क्योंकि यहां से एक ऑक्सीजन जो है वो सेकंड नंबर के कार्बन पे ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये हो गया आल्डो पेंटोज शुगर। अब हम बात करें दैट इज अबाउट कीटो पेंटोज शुगर। कीटो पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर ही, तो सबसे पहले तो हमको क्या फॉर्म करना पड़ेगा, कार्बन चेन। फर्स्ट स्टेप जो क्या है, टू फॉर्म ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 4 एंड 5, हमने कार्बन चेन बना लिया। सेकेंड स्टेप, ग्रुप कौन सा एक्टिव है, इसमें क्या है, कीटो। कीटो ऑलवेज प्रेजेंट एट द सब टर्मिनल। तो सब टर्मिनल मतलब C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, है ना। तो सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ओके। फर्स्ट नंबर के कार्बन के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा था वैसे CH2OH लिख सकते हैं, हाँ CH2OH। अब ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, हाँ या ना। सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं करना है, राइट। थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर OH H, फोर्थ पे OH H, और फिफ्थ पे अगेन क्या हम लिख सकते हैं, CH2OH, राइट। CH2OH का मतलब क्या लेना है, यहाँ पे C है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, टुगेदर इट इज व्हाट, CH2OH। तो वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिब्यूलोज। तो इसका जो एग्जाम्पल है किसका, कीटो पेंटोज का, वो एग्जाम्पल कौन सा है, रिब्यूलोज। वो एग्जाम्पल कौन सा है, रिब्यूलोज। अगर ये रिब्यूलोज जो है उसमें फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, अगर ये जो रिब्यूलोज है, रिब्यूलोज शुगर कैसा है, कीटो पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर है वो, कीटो पेंटोज। अगर ये रिब्यूलोज के साथ यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हुआ और वही रिब्यूलोज के साथ फिफ्थ कार्बन पे भी क्या अटैच हुआ, फॉस्फेट। कौन सी दो जगह पे, फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होगा और फिफ्थ कार्बन पे अगर फॉस्फेट अटैच होगा देन इट बिकम रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा वो, रिब्यूलोज 1,5। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5, उन दोनों पे क्या है, फॉस्फेट अटैच हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और वही टेक्निकली क्या है, वही है RUBP, मीन्स रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, जो आप पढ़ रहे हो किस में, डार्क रिएक्शन में या फिर कैल्विन साइकिल में, ठीक है। तो ये रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ये रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट है, दैट इज अ सबस्ट्रेट ऑन विच रुबिस्को एंजाइम विल वर्क। तो रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट के ऊपर कौन वर्क कर रहा है, रुबिस्को, रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट। तो रुबिस्को जो है वो रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और वही एंजाइम इसका क्या कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, राइट। दैट वी विल डिस्कस इन अ चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड में हमने दो ग्रुप जो है वो डिस्कस किए,
ट्रायोज एंड पेंटोज। चीजें क्या याद रखनी है, अगर ट्रायोज होगा तो पहले, या फिर पेंटोज, सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन चेन। सेकेंड स्टेप एक्टिव ग्रुप, और थर्ड जो है टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। 3 स्टेप की पूरी फॉर्मूला है। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेप कार्बन चेन फॉर्म करना, सेकेंड इज एक्टिव ग्रुप जो है वो लिखना, और थर्ड स्टेप जो क्या है टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये तीनों स्टेप जो याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ट्रायोज एंड पेंटोज। नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं मोनोसेकेराइड का एक पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं क्या, हेक्सोस शुगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेक्सोस मीन्स मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन। कितने कार्बन से वो बना है, 6 कार्बन से वो बना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 ग्रुप है, ठीक है। हेक्सोस जो है उसमें भी 2 ग्रुप है, और वो 2 ग्रुप जो है वो कौन सा है, एक जो है दैट इज आल्डोहेक्सोस, और दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोहेक्सोस। एक कैसा है, आल्डोहेक्सोस, और दूसरा ग्रुप जो है वो क्या है, कीटोहेक्सोस। अगर हम बात करें किसकी, आल्डोहेक्सोस की, किसकी अगर हम बात करें आल्डोहेक्सोस की, तो आल्डोहेक्सोस जो है उसमें हम 2 एग्जाम्पल जो है वो पढ़ने वाले हैं। आल्डोहेक्सोस में कितने एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 2 एग्जाम्पल, ठीक है। और वो आल्डोहेक्सोस जो है उसके 2 एग्जाम्पल है, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कौन से 2 एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, आल्डोहेक्सोस, राइट। हेक्सोस मीन्स मेड अप ऑफ 6 कार्बन एंड इट हैविंग एक्टिव ग्रुप दैट इज आल्डो, ठीक है। और कीटोहेक्सोस जो है उसमें हम एक एग्जांपल लेंगे एंड दैट इज फ्रुक्टोज। वो एग्जांपल कौन सा है, फ्रुक्टोज है, ठीक है। चलिए, तो आल्डोहेक्सोस में 2 एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और कीटोहेक्सोस में एक एग्जांपल दैट इज फ्रुक्टोज। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है, टू फॉर्म अ कार्बन चेन, और यहाँ पे हेक्सोस शुगर है इसलिए कार्बन कितने आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। सेम वे अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो भी 1 2 3 4 5 6। सेम वे अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूं तो भी 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे तीनों की तीनों कैसी है, हेक्सोस शुगर। अब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों कैसी शुगर है, इट इज आल्डोहेक्सोस। अगर आल्डोहेक्सोस है तो फर्स्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा, आल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO, आया ना। तो यहाँ पे ये आल्डो शुगर का आल्डो ग्रुप सेकंड स्टेप जो हमने कंप्लीट किया। अब थर्ड स्टेप जो है दैट इज टू सेट अ वैलेंसी ऑफ कार्बन, और वो कितनी है, 4। अब फर्स्ट कार्बन पे वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि टेक्निकली ये क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या आएगा, OH एंड H, ठीक है। अब हम यहाँ पे कार्बन जो है उसके सीक्वेंस लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो यहाँ पे आल्डोहेक्सोस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में हमने कार्बन चेन फॉर्म कर लिया है, और दोनों में हमने आल्डिहाइड ग्रुप जो है वो भी लगा दिया है। अब हम इसमें कार्बन की वैलेंसी जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो राइट साइड में हम क्या लिख रहे हैं, OH, लेफ्ट साइड में क्या लिख रहे हैं, H। तो ओरिएंटेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो है वो क्या, इट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वो कहाँ पे है, राइट साइड में। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि थर्ड नंबर जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन जो है वहां पे ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो जनरली हम OH ग्रुप राइट साइड में लिख रहे थे, थर्ड नंबर के कार्बन पे यहाँ पे क्या आएगा, OH ग्रुप जो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, H। तो आपको याद रखना है वो क्या, आपको जो याद रखना है दैट इज थर्ड नंबर कार्बन। थर्ड नंबर कार्बन पे क्या होगा, थर्ड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होगा। कौन सी शुगर में, हेक्सोस शुगर में, ठीक है। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं। अब बाकी के जो कार्बन है उसमें एज इट इज OH H, यहाँ पे क्या होगा OH H, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट। अब लास्ट की वैलेंसी CH2OH, राइट। वो टेक्निकली क्या है वो हमने आगे देखा है, ठीक है। एक साइड OH नीचे और साइड में HH, तो उसका वो 4 वैलेंसी वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज जो है उसका मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो वो क्या है, इट इज C6H12O6। वो क्या है, C6H12O6, ये हम जानते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करें दैट इज अबाउट गैलेक्टोज। वो भी कैसा है, आल्डो शुगर। हमने आल्डिहाइड ग्रुप भी यहाँ पे सेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको कार्बन की वैलेंसी जो वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर के कार्बन पे OH H जैसे ग्लूकोज में था वैसे ही।
थर्ड नंबर के कार्बन पे यहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो क्या हुआ है, चेंज। तो OH जो कहां पे आएगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और हाइड्रोजन कहां पे आएगा, टुवर्ड्स द राइट साइड। जैसे कहां पे था, ग्लूकोज में था, वैसे ही तो यहां पे भी ओरिएंटेशन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वो थर्ड कार्बन पे क्या हुआ है, चेंज। लेकिन यहां पे एक एडिशनल चीज जो है वो आपको याद रखनी, वो एडिशनल चीज ये है कि फोर्थ कार्बन पे भी यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ओनली थर्ड कार्बन पे, अगर हम ग्लूकोज की बात करें दैट मींस देयर इज अ चेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ओनली थर्ड कार्बन। और अगर मैं गैलेक्टोज की बात करूं तो उसमें थर्ड और फोर्थ दोनों में ओरिएंटेशन जो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, बाकी की चीजें जो है दैट इज एज इट इज। यहां पे क्या आएगा, OH, यहां पे क्या आएगा, H, एंड लास्टली CH2OH। ठीक है, यहां पे भी इसका भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो क्या आएगा, C6H12O6। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उसमें थर्ड कार्बन जो है वहां पे ही आपको फोकस करना है। ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, और गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ दोनों कार्बन पे क्या हुआ है, ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। अब हम बात करें किसकी, फ्रुक्टोज की। तो फ्रुक्टोज इज ऑल्सो हेक्सो शुगर। तो हमने 6 कार्बन की लीनियर चेन तो बना दी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो क्या होगा, टू फॉर्म अ कीटो ग्रुप। और कीटो ग्रुप ऑलवेज कहां पे होता है, कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अ सब टर्मिनल कार्बन। ठीक है, और वो सब टर्मिनल कार्बन जो है वो हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड कार्बन। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O। अगर मैंने C डबल बॉन्ड O लिखा है तो उसका मतलब ये है कि सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब बाकी के कार्बन में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH2OH। तो टेक्निकली ये क्या हुआ, वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। एक साइड OH, ऊपर H, साइड में H, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब वापस कौन सा देखें, थर्ड नंबर का कार्बन है। तो थर्ड नंबर के कार्बन पे यहाँ पे भी ओरिएंटेशन क्या हो चुका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो चेंज हो चुका है, उसको हम वापस ब्लॉक में ले लेते हैं, इसलिए आपको वो याद रहे। तो यहां पे देखिए कि थर्ड नंबर के कार्बन जो है उसमें तीनों में, वेदर इट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर फ्रुक्टोज, तीनों में थर्ड नंबर के कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका ओरिएंटेशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ये तीनों में याद रखना है। लेकिन गैलेक्टोज में दो चीज याद रखनी है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों पे ओरिएंटेशन क्या हुआ है, चेंज। लेकिन ये दोनों आल्डो शुगर है, ये क्या है, कीटो शुगर है। ठीक है, ओके, बाकी के कार्बन जो है उसकी वैलेंसी अगर हम कंप्लीट करें तो वो एज इट इज आएगा, दैट इज OH एंड H, देन OH एंड H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से चेंज स्ट्रक्चर जो है बनेंगे। वापस आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स। ट्रायोज में आल्डो कीटो कौन सा है, आल्डो ग्लिसरॉल्डिहाइड, कीटो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर अगर हम बात करें पेंटोज में आल्डो कीटो कौन कौन सा है, पेंटोज में आल्डो में 2 रिबोज एंड डीऑक्सरिबोज, और कीटो में क्या है, रिब्यूलोज। ठीक है, अगर हम हेक्सो शुगर की बात करें तो आल्डो में 2 एग्जांपल, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज में थर्ड नंबर के कार्बन पे, गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ नंबर के कार्बन पे ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज चेंज। अगर हम बात करें फ्रुक्टोज की तो फ्रुक्टोज जो है कीटो शुगर, कीटो हेक्सोज, और उसमें भी थर्ड नंबर के कार्बन पे ओरिएंटेशन जो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे आपको ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज शुगर जो है वो सारे के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है या फिर लीनियर चेन स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गए होंगे। 3 स्टेप याद रखने हैं, टू फॉर्म अ कार्बन चेन, सेकंड इज टू पुट अ एक्टिव ग्रुप, एंड थर्ड इज टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। वापस, first is to form a carbon chain, second is to put a active group, and the third one is what, to set a valency of the carbon। चलिए, तो ये हमने स्ट्रक्चर देखे। अब हम देखते जा रहे हैं थोड़े रिंग स्ट्रक्चर, और रिंग स्ट्रक्चर में मेनली हम देखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। ठीक है, बाकी एक रिंग स्ट्रक्चर अगर मैंने आपको समझा दिया तो बाकी के रिंग स्ट्रक्चर जो आप जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करें मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में कौन से स्ट्रक्चर की हम बात करें, मोनोसेकेराइड जो है उसमें हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट रिंग स्ट्रक्चर। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर की बात करें। और रिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज ग्लूकोज। हम किसके रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की बात करें। अगर ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो बाकी के दोनों मतलब गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज जो है वो एकदम इजी है। ठीक है, चलिए, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो है उसका लीनियर स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये एल्डिहाइड है तो इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O एंड H, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, फिर सेकंड नंबर के कार्बन पे यहां पे क्या आएगा, OH एंड H।
ओके अब जो कार्बन जो है वो कौन सा है, थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे क्या याद रखना है, ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप इज चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे, HO, राइट साइड पे क्या लिखेंगे, H। ओके फिर फोर्थ कार्बन पे क्या आएगा, OH, फिफ्थ पे भी क्या आएगा, OH, और लास्ट में क्या आएगा, CH2OH। ये जो है वो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके अब ये जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन ये आपको याद रखना है। कौन से, जब हम क्या बना रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर रहे हैं, तब आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन जो वो याद रखने हैं इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और वो दोनों कैसी है, वो दोनों शुगर कैसी है, वो दोनों शुगर जो है वो आल्डोहेक्सोस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर हम कार्बन जो है उसका नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन है और ये कौन सा है, फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कार्बन जो है उसमें एल्डिहाइड में जो H है वो, एंड फिफ्थ कार्बन पे क्या है, OH है। कौन से कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। टुगेदर दे फॉर्म व्हाट, H2O, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से एक चीज याद रखो कि यहाँ से देयर इज अ रिमूवल ऑफ H2O। यहाँ से H2O जो है वो क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। और वो H2O दूर होने से वहाँ पे फॉर्म क्या होगा, वहाँ पे H2O टेक्निकली वो दूर नहीं हो रहा है, H2O जो है वो दूर होके वापस आप ऐसे समझो कि वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। किसमें, H एंड OH में। किसमें स्प्लिट हो रहा है, H एंड OH। और वापस वो कार्बन जो है या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है। ओके अब ये जो पार्टनरशिप है किसकी, H2O फॉर्म करने की, वो कौन से कार्बन के बीच में हो रही है, फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। किसके बीच में हो रही है, फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। और उसके बाद ये फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन जो है उसमें ये अगर हम ऑक्सीजन की H2O की बात करें वो अगर निकल जाएगा तो ये जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये रिंग फॉर्म बन गया और ये दोनों जब अटैच होंगे तब फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड का H और फिफ्थ कार्बन पे OH ये दोनों अटैच हो रहे हैं और वहां से H2O जो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। लेकिन वो रिलीज होगा नहीं टेक्निकली, वो वापस क्या करेगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। ओके तो बेसिकली यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है। लेकिन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड किस में फॉर्म हुआ, एक ही शुगर के बीच में, फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में। शुगर मॉलिक्यूल एक ही है, उसके फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। और ऐसे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को बोलेंगे हम हेमी एसिटल बॉन्ड। हम उसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल बॉन्ड। एक चीज याद रखना, अगर दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। ये ग्लाइकोसिलिक का ही एक टाइप है। लेकिन यहां पे वो बॉन्ड फॉर्म हुआ किसके बीच में, एक ही शुगर के, हम बात करें अगर सर्कुलर फॉर्म में या फिर रिंग फॉर्म में ये फॉर्म हुआ, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम उसको, हेमी एसिटल बॉन्ड। ओके अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो हेमी एसिटल बॉन्ड है उसमें क्या होगा कि फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो स्ट्रक्चर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब वो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल होगा। ये रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेक्सागोनल। अब ये रिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें आप अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, ये दोनों देखिए किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। फर्स्ट एंड फिफ्थ ये दोनों किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, ठीक है। ओके ये फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर देखिए ये फर्स्ट कार्बन में ये ऑक्सीजन जो है वो तो इसके साथ अटैच हो चुका है, हाँ या ना। ओके तो बाकी क्या बता, H। तो H जो है वो वापस आ जाएगा क्योंकि मैंने बोला कि H2O जो है और OH वो वापस क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा, H एंड OH। तो फर्स्ट कार्बन पे हम क्या लिखेंगे, H एंड OH, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है वो कौन सा है, ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया था वही है। और ये OH जो है वो कौन सा है, फिफ्थ कार्बन पे था वो, हाँ या ना। तो वो H और OH वो अब कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। उसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ये जो है वो नथिंग बट इट इज अ एल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट कार्बन पे अभी भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन बस फर्क क्या पड़ा है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। और रिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन।
ओके, फर्स्ट कार्बन पे H था वो एज इट इज है, फिफ्थ कार्बन पे OH था वो अब रोटेट होके किसके साथ आ गया है, फर्स्ट कार्बन के साथ। तो फर्स्ट कार्बन में अभी भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हम सेकंड कार्बन की अगर हम बात करें तो ये सेकंड कार्बन हो गया, राइट, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, सिक्स। तो सिक्स कार्बन में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो सिक्स कार्बन वाला हमने क्या लिख दिया, CH2OH, हमने फर्स्ट कार्बन लिख दिया है, हमने फिफ्थ जो है वो लिख दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे क्या आया, HOH। अब सेकंड देखो, ये सेकंड है, उसमें क्या है, HOH, तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, HNOH। थर्ड जो कार्बन है उसमें ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो क्या हो चुका है, चेंज, तो यहाँ पे हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, ऊपर क्या आएगा OH, नीचे क्या आएगा H। कौन से कार्बन पे, थर्ड, ये यहाँ पे भी आप याद रखो, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ओके, तो हम थर्ड तक पहुंचे। अब हम बात करें किसकी, फोर्थ कार्बन की। तो फोर्थ कार्बन जो है उसमें क्या है, HOH, तो वो एज इट इज लिख दो, HOH। फिफ्थ कार्बन जो है वो एक साइड किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन। फिफ्थ कार्बन एक साइड किसके साथ अटैच है, फर्स्ट कार्बन के साथ विथ ऑक्सीजन। दूसरी साइड क्या है, H, तो ये H लिखना बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, और ऊपर जो है वो क्या है, सिक्स कार्बन। तो फिफ्थ देखिए, फिफ्थ इज कनेक्टेड विद द वन बाय ऑक्सीजन, फिफ्थ इज कनेक्टेड विद द वन बाय ऑक्सीजन। फिफ्थ ऑल्सो हैविंग अ हाइड्रोजन, फिफ्थ ऑल्सो हैविंग अ हाइड्रोजन। फिफ्थ इज कनेक्टेड विद द फोर्थ, fifth is connected with the fourth, fifth is connected with the sixth, fifth is connected with the sixth, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो हमने बनाया, वो क्या है, रिंग स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है। ये मैंने बताया जैसे आपको, ये मैंने किसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ग्लूकोज का। ये मैंने किसका रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ग्लूकोज का। अगर सेम वे मैं गैलेक्टोज की बात करूं, मैं क्या करूं, गैलेक्टोज की बात, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चेंजेस कुछ नहीं है। क्या चेंजेस है, एक ही चेंजेस है कि वो अगर हम बात करें वो थर्ड और फोर्थ कार्बन के ऊपर है। तो अगर हम बात करें गैलेक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। किसका रिंग स्ट्रक्चर है ये, ग्लूकोज का। अगर मुझे रिंग स्ट्रक्चर बनाना है अब किसका, गैलेक्टोज का, किसका रिंग स्ट्रक्चर मुझे फॉर्म करना है, गैलेक्टोज का। तो गैलेक्टोज जो है दैट इज ऑल्सो हेक्सो शुगर, ठीक है, तो उसमें कुछ रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे फॉर्म होगा, हेक्सागोनल, है या ना। अगर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो कार्बन जो है उसके नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऊपर क्या आएगा, सिक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे सिक्स। अब अगर हम बात करिए तो फर्स्ट कार्बन में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे था HOH, सेकंड पे क्या आएगा, HOH। अब याद रखो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, OH, और नीचे H। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे भी देयर इज अ चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ऊपर OH, नीचे H। यहाँ पे देखिए फोर्थ पे हमने क्या लिखा है, ऊपर H, नीचे OH, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, OH, नीचे H, क्योंकि गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ कार्बन जो है उन दोनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन जो है क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। ओके, फिफ्थ के नीचे क्या आएगा, H, और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स पे CH2OH। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये स्ट्रक्चर किसका रिंग स्ट्रक्चर है, इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ कार्बन वो आपको याद रखना है, बाकी की सारी चीजें जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। चलिए एक दूसरी चीज जो है वो हम यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अलावा हम एक और रिंग स्ट्रक्चर की बात करें दैट इज अबाउट फ्रुक्टोज, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है वो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ फोर्थ कार्बन पे ध्यान रखना है, क्योंकि गैलेक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ दोनों पे देयर इज अ चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब हम जो बात करें दैट इज अबाउट फ्रुक्टोज, हम किसकी बात करें, फ्रुक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर जो मैं निकाल रहा हूं यहां से, ठीक है, ओके, ये मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका, फ्रुक्टोज का। पहले एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लीनियर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं किसका, फ्रुक्टोज का। तो फ्रुक्टोज का अगर मैं लीनियर स्ट्रक्चर बनाऊं तो फ्रुक्टोज जो है दैट इज ऑल्सो हेक्सो शुगर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH, डबल बॉन्ड O सेकंड कार्बन पे, क्योंकि कीटोन शुगर है।
फ्रुक्टोज जो कैसा है, कीटोहेक्सोस, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर के कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज HON H, फिर फोर्थ पे OH H, फिफ्थ पे OH H और सिक्स पे CH2OH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का, वो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब ये फ्रुक्टोज जो है वो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होने वाला है रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए वो यहाँ पे फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे बीच में हो रहा था। किसके, फर्स्ट एंड फिफ्थ। यहाँ पे कार्बन नंबर देते थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हो रहा था टू फॉर्म अ रिंग चेन वो किसके बीच में हो रहा था, आल्डो ग्रुप ऑन फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच पे। यहाँ पे कीटो ग्रुप कहाँ पे, सेकंड नंबर के कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर या फिर हम ये बोले कि जो पार्टिसिपेशन होने वाला है दैट इज बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन। किसके बीच पे होने वाला है, सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन। और उसकी वजह से यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा किसका, फ्रुक्टोज का, वो रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इट इज अ पेंटागोनल स्ट्रक्चर। अगर हम किसकी बात करें, फ्रुक्टोज की बात करें तो उसमें रिंग स्ट्रक्चर हेक्सागोनल ना हो के कैसा होगा, पेंटागोनल। अब पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर में जो पार्टिसिपेशन हो रहा है दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन जो वो कौन कौन से कार्बन के बीच में है, सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, जिसके बीच में है सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब सेकेंड कार्बन जो है उसका ये इसके साथ अटैच हो चुका है तो यहाँ पे ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, OH। वो OH ये वाला है, फिफ्थ वाला। कौन सा OH है, वो फिफ्थ वाला OH है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, दिस इज द फर्स्ट कार्बन CH2OH। वो कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, है ना, ओके। फिर यहाँ पे जो है वो कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज हुआ है तो ऊपर क्या आएगा HO, नीचे क्या आएगा H। वो कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन, ठीक है। फिर कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन में कोई चेंजेस नहीं, ऊपर क्या आएगा H, नीचे क्या आ जाएगा OH। एक चीज याद रखो, जो राइट साइड है वो नीचे लिखना है, जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर लिखना है, ठीक है। तो थर्ड कार्बन जो है उसमें देखिए ओरिएंटेशन चेंज हुआ है इसलिए वहां पे ऊपर OH लिखेंगे हम, नीचे क्या लिखेंगे H, ओके। अब ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन पे नीचे क्या आएगा H, फिफ्थ कार्बन पे नीचे क्या आ जाएगा H। और ऊपर सिक्स कार्बन तो एज इट इज है, तो सिक्स कार्बन जो वो क्या है CH2OH। और वो कौन सा कार्बन है, सिक्स कार्बन। वो कौन सा कार्बन है, सिक्स कार्बन, ठीक है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इट इज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। और ये जो है वो किसका रिंग स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज गैलेक्टोज वो दोनों ऐसी तरीके से हेक्सागोनल थे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इट इज अ हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर विथ 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन। अगर ये रिंग स्ट्रक्चर आप देखें तो वो कैसा है, हेक्सागोनल है, विच इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसमें एक ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 5 क्या है, कार्बन। ऐसा रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे पायरेनोज रिंग। ऐसे रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पायरेनोज रिंग, ठीक है। जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, एक ऑक्सीजन होगा, 5 कार्बन होंगे, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें किसकी, फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अ पेंटागोनल। कैसा स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल, फॉर्म्ड बाय और विथ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन। तो दोनों में फर्क है, यहां पे 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन इसलिए वो कैसा है, हेक्सागोनल। यहां पे 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उससे वो रिंग फॉर्म हुआ है। फर्स्ट और सेकंड जो, फर्स्ट एंड 6 जो है वो तो रिंग से बाहर है, ठीक है। यहां पे सिर्फ 6 जो रिंग के बाहर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड ऑक्सीजन वो रिंग में है। यहां पे 2 3 4 5 और रिंग और ऑक्सीजन उससे रिंग बन रहा है, तो 1 और 6 रिंग से कहां है, बाहर, ओके। और ऐसे रिंग को हम बोलेंगे फ्यूरानोज रिंग। ऐसे रिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज रिंग, विच इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन। और वो कैसा होगा, पेंटागोनल। और यहाँ पे हेक्सागोनल जिसको हम बोलेंगे पायरेनोज रिंग, विच इज फॉर्म बाय 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन। तो यहाँ पे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज तीनों के लीनियर स्ट्रक्चर, तीनों के रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखे। अब मोनोसैकेराइड की थोड़ी और डिटेल लेते हैं। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने ये
3 स्लाइड में आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेंटोज एंड हेक्सो शुगर अकर इन ओपन चेन। पेंटोज और किसकी बात कर रहे हैं हम, हेक्सो शुगर। पेंटोज एंड हेक्सो शुगर अकर इन ओपन चेन एंड टू रिंग फॉर्म्स। तो पेंटोज और हेक्सो शुगर है वो ओपन चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। और रिंग जो वो कौन से टाइप के होंगे, पायरेनोज एंड फ्यूरानोज। पायरेनोज कब, जब एक ऑक्सीजन 5 कार्बन होंगे, ठीक है, और फ्यूरानोज जो कब होंगे, जब एक ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन होंगे। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें, ठीक है, तो पेंटोज शुगर का रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हम देखेंगे कि इसमें जब हम न्यूक्लिक एसिड देखेंगे तब, ठीक है। यहां पे हमने देखा है कि इसका हेक्सो शुगर का हमने देखा। तो पायरेनोज रिंग मीन्स मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन एंड इट इज हेक्सागोनल। फ्यूरानोज मीन्स मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन, दैट इज pentagonal. For example, fructose. Pyranose ring, this ring form is hexagonal with 1 oxygen and 5 carbon. For example, glucose and galactose. हाँ या ना? Okay. चलिए, furanose ring, this ring form is pentagonal with 1 oxygen atom एंड 4 कार्बन एटम, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, पेंटागोनल। एग्जाम्पल फ्रुक्टोज हमने लिखा है, और उसके अलावा रिबोज और डीऑक्सीरिबोज वो तो 5 कार्बन शुगर ही है, इसलिए वो कैसा बनेगा, पेंटागोनल ही बनेगा, ठीक है। वो हम डिटेल में जब मैंने बताया, जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तब आएगा वो, ओके। उससे फर्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज अबाउट ग्लूकोज। वैसे सारी डिटेल हम ले चुके हैं। ग्लूकोज इज कॉल्ड यूनिवर्सल शुगर, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर एंड डेक्स्ट्रोज शुगर। ग्लूकोज जो वो यूनिवर्सल शुगर है बिकॉज ग्लूकोज इज अ मेन वी कैन से दैट द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर हम बात करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन साइकिल जो है उसमें ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है। तो ग्लाइकोलिसिस में किसका कंबशन स्टार्ट हो रहा है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जो है वो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल शुगर, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैप शुगर, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेक्स्ट्रोज शुगर जो है वो भी बोल सकते हैं, राइट। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज अगर हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, तो ये सपोज ग्लूकोज जो है उसका रिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा हेक्सागोनल, और रिंग कौन सी, पायरेनोज, ठीक है। फर्स्ट कार्बन HOH, सेकंड कार्बन HOH, थर्ड कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज, ऊपर OH नीचे H, फोर्थ पे HOH, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ओनली टेक्स प्लेस ऑन थर्ड कार्बन, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ, नीचे क्या आएगा H, ये सिक्स्थ हो गया CH2OH। तो ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ये फर्स्ट कार्बन पे है कौन सा ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो कोई भी सैकेराइड में वेदर इट इज आल्डो और कीटो, अगर एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप जो है वो फ्री रह रहा है या फिर अनयूज रह रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो कैसे शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगेन याद रखना, अगर एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप अनयूज हो रहा है, मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है, इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल नॉट पार्टिसिपेट टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, तब ऐसे शुगर को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो बोलेंगे, राइट। सो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर due to presence of the aldehyde group. It can reduce cupric ion of Benedict and Fehling reagent solution to cuprous ion. वो क्यूप्रिक आयन जो है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट करेगा बाय रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज में रिड्यूसिंग पावर है। रिड्यूसिंग पावर कब होगा, जब उसके पास एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप जो कैसा होगा, एक्टिव। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये तीनों के पास अगर हम सेपरेट रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब हर एक मोनोसैकेराइड जो है उसमें आरडी या फिर कीटो ग्रुप जो वो एक्टिव ही रहेगा, ठीक है, इट विल रिमेन अनयूज अगर वो मोनोसैकेराइड है तो, और इसलिए वो सारे के सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। चलिए, ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एंड आल्डोज शुगर। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों, देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्या है OH, सेकंड पे क्या है OH, थर्ड पे क्या है OH, फोर्थ पे क्या है OH, इसके अलावा फर्स्ट पे भी क्या है OH, सिक्स पे क्या है OH। तो एक ही अगर हम बात करें एक ही ग्लूकोज की, तो एक ही ग्लूकोज में कितनी जगह पे OH है, बहुत सारी जगह पे, दैट इज व्हाई इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। एंड आल्डोज शुगर व्हाई, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप जो वो एक्टिव है फर्स्ट कार्बन पे, राइट, एज इट हैज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
5 OH हम लिख रहे थे, राइट, एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। चलिए, ग्लूकोज इज फाउंड इन रिंग एंड ओपन चेन फॉर्म, दिस टू फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ये हमने रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, अगर ये यहां से हम ब्रेक कर देंगे तो वापस वो लीनियर फॉर्म जो है वो डेवलप हो जाएगा या फिर चेन फॉर्म, राइट। ड्यूरिंग रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तब क्या होगा, ठीक है, ये ध्यान से देखो। ड्यूरिंग रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन द एल्डिहाइड ग्रुप at first carbon makes a glycosidic bond with OH at 5th carbon। तो यहां पे फर्स्ट कार्बन पे जो एल्डिहाइड था वो 5th कार्बन के OH के साथ क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। OH 5th कार्बन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड और 5th कार्बन पे OH, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट बॉन्ड इज नोन एज हेमी एसिटल बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल बॉन्ड। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पाइरेनोज रिंग। तो फर्स्ट और 5th एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और उससे क्या बन जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। वैसे ये डिटेल में मैं आगे पढ़ा चुका हूँ, राइट। चलिए, नेक्स्ट मोनोसैकेराइड इज हेक्सोस शुगर इज फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज कॉल्ड द फ्रूट शुगर, इट इज ऑल्सो नोन एज लेव्युलोज शुगर। फ्रुक्टोज जो है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज जो है उसको हम फ्रूट शुगर भी बोलेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज लेव्युलोज, ये आपको याद रहना चाहिए ये टर्म, राइट। ओके, इट इज नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर। सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर जो है वो कौन सी है, फ्रुक्टोज, नेचुरली अकरिंग, ठीक है, उसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा सैकराइड्स नहीं डाले हैं। ओके, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एंड कीटो शुगर। जब हमने चेन फॉर्म बनाया था फ्रुक्टोज का तो उसमें भी बहुत सारे OH ग्रुप थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी। और सेकंड नंबर के कार्बन पे हम क्या लिखते थे, C डबल बॉन्ड O, बिकॉज इट इज अ कीटो शुगर, एज इट हैज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 1 कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप कहाँ पे होगा, सब टर्मिनल पे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आल्डो ग्रुप कहाँ पे होगा, टर्मिनल कार्बन पे, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कीटो ग्रुप इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। उसमें भी एक क्या है, कीटो ग्रुप एक्टिव। एक चीज याद रखो क्लियरली बच्चा पार्टी, कि हर एक मोनोसैकेराइड जो है हेक्सोस की, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, इंडिविजुअली दे आर रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि जब वो अकेले हैं तब तो एल्डिहाइड जो है वो अनयूज्ड है, कीटो जो है वो अनयूज्ड है, तो वो कैसे है, रिड्यूसिंग शुगर ही है, राइट। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओपन एंड रिंग फॉर्म, द रिंग फॉर्म इज फ्यूरानोज। रिंग फॉर्म कैसा है, फ्यूरानोज, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन आइटम, राइट। सो हियर वी आर डन विद दिस लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में स्ट्रक्चर देखे और साथ में हमने रिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी हेक्सोस में तीनों शुगर के देखे। हमने पाइरेनोज रिंग देखा विच इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन और एंड इट इज अ हेक्सागोनल। और हमने फ्यूरानोज रिंग भी देखा विच इज फाउंड इन द फ्रुक्टोज विच इज फॉर्म बाय 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एंड इट इज अ पेंटागोनल। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मैनी चैप्टर ऑफ द फिजियोलॉजी। तो इसलिए नोट्स जो है वो सही से बनाना, बार बार ये स्ट्रक्चर जो है उसकी प्रैक्टिस करना, तब जाके वो सारी चीजें जो है वो कंपाइल हो पाएगी, राइट। और अगर ये चैप्टर जो आपको समझ में आ गया तो उसका मतलब ये है कि आगे के 3-4 चैप्टर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए रेडी है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, मेरे लेक्चर और कंटेंट का लेवल सही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में प्ले स्टोर में जाके हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।